Hello everyone, welcome back to the channel. Today we will talk about a period जिसने English literature का pace set किया, the age of Chaucer, that is the time between 1300 to 1400. Now you all must be thinking, why read about Chaucer? वो तो बहुत historic writer है. But trust me, ये age काफ़ी interesting थी. इसमें plagues, rebellions, wars और एक poet ऐसा जिसने English literature की language ही बदल दी. So let's begin our journey into a century full of drama and literary transformation. So now let's see what are the key highlights of this lecture that we will cover. First, we will read a brief introduction of this period. Then we will sail towards how significant is the history of this age. Then we will follow literary styles followed by the writers of this age in their specific works, and then all the events that have shaped the history of this age. So let's move forward. Now comes the first question. इस पीरियड का नाम चौसर के नाम पर क्यों पड़ा? Why? That was because Geoffrey Chaucer was the most influential literary figure of this period. Important literary figure होने की वजह से उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एक important और एक literary language बनाया. Now let's cast some light on the key highlights of this age. अब जो मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज थी उसने लैटिन और फ्रेंच को रिप्लेस कर दिया. Important historical events हुए like Black Death, the Peasants' Revolt and the 100 Years' War. फ्यूडलिज्म डिक्लाइन होने लगा और लोग चर्च की अथॉरिटी को क्वेश्चन करने लगे. राइट, फ्यूडलिज्म डिक्लाइंड और लोगों ने चर्च की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया. इस सेंचुरी ने बहुत बड़ा सोशल चेंज और सोशल शिफ्ट विटनेस किया. नाउ जब मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज ने लैटिन और फ्रेंच को ओवरकम किया एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो कोर्ट्स में और कॉमन पीपल भी उसको काफ़ी हद तक यूज़ करने लगे. इट बिकेम स्टैंडर्डाइज्ड, राइट? So now we will move forward and read about the historical background and events that shaped this period. First comes the Black Death. This happened in 1347. इस प्लेग को हम ब्यूबॉनिक प्लेग के नाम से भी बोलते हैं और ये हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट प्लेग था. It spread across Europe, Asia, and North Africa, killing around 75 to 200 million people worldwide, जो एक बहुत बड़ा नंबर है. इतने लोगों का मरना इज नॉट नॉर्मल, राइट? सो इस प्लेग का नाम आया ब्लैक स्वेलिंग से, जो बॉडी पे दिखते थे. इट स्प्रेड थ्रू फ्लीज ऑन रैट्स एंड पीपल डाइड, विच लेड टू लेबर शॉर्टेजेस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस इवेंचुअली. सो इस प्लेग ने लोगों की लाइफ, थिंकिंग और राइटिंग सबको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया. नाउ द नेक्स्ट इवेंट दैट कम्स इज 1381 में द पेजेंट्स रिवॉल्ट. इसको हम वॉट टाइलर रिबेलियन के नाम से भी बोलते हैं. सो आफ्टर द पॉपुलेशन वॉज रिड्यूस्ड बाय द ब्लैक डेथ, मतलब अराउंड 75 to 200 मिलियन लोग जब ब्लैक डेथ की वजह से मरे, तो वर्कर्स what did they do? They started to demand higher wages for their work. अब रूलिंग क्लास ने रिस्पॉन्स में लॉज पास किए टू कीप देयर वेजेस लो और पोल टैक्स भी इम्पोज किया. तभी वॉट टाइलर एंड जॉन बॉल ने इस रिबेलियन को लीड किया. सो हु वर द लीडर्स ऑफ दिस रिबेलियन? दे वर वॉट टाइलर एंड जॉन बॉल. सो किंग ने इनिशियली रिफॉर्म्स का प्रॉमिस तो कर दिया, बट लेटर वॉट टाइलर वाज किल्ड एंड द रिवॉल्ट lost its momentum. Why? Because अब कोई लीडर ही नहीं बचा. Without the revolt was without a leader. So this revolt was a statement of human dignity and a turning point. ये एक बहुत बड़ी awakening थी. लोगों ने पहली बार अपनी dignity और rights demand किए. Right? Interesting. I hope you all are getting it. Now let's look at the key events of this century step by step. Geoffrey Chaucer was born in 1340. Black Death arrived in Europe in 1348. Chaucer joined English army during 100 Years' War in 1360s. Chaucer married Philippa Roth. इनके फिलिपा रोथ के कोर्ट में काफ़ी कनेक्शंस थे. दिस हैपेंड इन 1366. 1377 में किंग एडवर्ड III डाइड, जिसकी वजह से काफ़ी पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ. Peasants' Revolt happened in 1381 and it was led by Wat Tyler and John Ball.
1400 में चौसर डाइज विच ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ दिस एज। ये टाइमलाइन बताता है कि ये पीरियड कितना ज़्यादा टर्बुलेंट था। सो नाउ कम्स द वेरी एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस एज, दैट इज द लिटरेचर। नाउ मिडिल इंग्लिश इवॉल्व्ड एज अ लिटरेरी लैंग्वेज। इस टाइम तक इंग्लिश ने लैटिन और फ्रेंच को रिप्लेस कर दिया था। It, it became the language of courts, parliaments, and of the common people. That also means that English language got standardized as the official language, right? Now, this age also witnessed a shift from religious to secular themes. Medieval literature ज़्यादा religious और moralistic था, बट इस एज में राइटर्स ने सेक्युलर और ह्यूमन सेंटर्ड थीम्स पे फोकस किया, जैसे लव, एम्बिशन, हिपोक्रेसी एंड सोशल इनजस्टिस। काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक कैरेक्टर्स यूज़ किए राइटर्स ने अपने वर्क्स में। लिटरेचर में ऐसे कैरेक्टर्स आए जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड थे, लाइक नाइट्स, पेजेंट्स, मॉन्क्स एंड नोबल्स। कैरेक्टर्स बन गए इंडिविजुअलिस्टिक एंड साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स। नाउ चौसर ने फ्रेम नैरेटिव का यूज़ किया। इट इज़ अ नैरेटिव टेक्निक जो उन्होंने अपनी वर्क द कैंटरबरी टेल्स में यूज़ किया। मेन कहानी के अंदर मल्टीपल स्टोरीज होती थी और ईच स्टोरी इज टोल्ड बाय डिफरेंट कैरेक्टर्स। प्लीज रिमेंबर द टेक्निक ऑफ फ्रेम नैरेटिव। इट इज़ अ मेथड ऑफ टेलिंग स्टोरीज वेयर अ मेन स्टोरी इंक्लूड्स मल्टीपल स्टोरीज। राइटर्स ने सॉफ्ट ह्यूमर एंड आयरनी यूज करके चर्च, फ्यूडलिज्म एंड हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया। इस स्टाइल ने लिटरेचर को ज़्यादा एंटरटेनिंग एंड थॉटफुल भी बनाया। सो नाउ लेट्स conclude this age by answering a question, that is, why does the age of Chaucer matter today? Because this was the time when English literature got its voice and identity. सोसाइटी चेंज हो रही थी, लैंग्वेज इवॉल्व हो रही थी, और चौसर जैसे राइटर्स ने इंग्लिश को एक सीरियस लिटरेरी लैंग्वेज बनाया। उन्होंने हमें दिखाया कि लिटरेचर सिर्फ किंग्स या सेंट्स के लिए नहीं होता है, बल्कि कॉमन पीपल, उनके स्ट्रगल्स और उनके एक्सपीरियंसेस भी पोइट्री के लायक हैं। So students, thanks for staying with me till the end. If you like this video, do like, share and subscribe to my channel for more such content. We will meet in the next lecture. Tab tak ke liye, stay curious and keep learning.